Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share. Today I am going to teach you simple past tense. Simple past tense is called bhutkal in Hindi. Simple past tense is used to express a past event which happened in the past. For example, I met her last year. It is used for past habits. I visit Jaipur every year. I used to play football. It is used with words yesterday, ago, last year, last week, yesterday night. I saw him yesterday. I met him a week ago. These words are not used with present perfect tense. These are used in simple past. Simple past is also used with polite request. Could you give me your pen, please? I wanted to talk to you for a minute. I wanted to talk to you for a minute. Present में he wants to talk in present time, but as it is a polite request, so he is using I wanted to talk to you for a minute. Simple past is used in changing direct into indirect. When we convert a sentence into indirect speech, then we change simple present tense into past tense. Rani said she works hard. Rani said that she worked hard. Works is simple present tense and we change into simple past, worked. Simple past is used with if, as if, I wish it is time. He speaks as if he were my boss. He is not my boss, but he pretends to my boss, so I said he speaks as if he were my boss. Please note, singular is used, he is singular subject, but यहाँ पर हम were use करेंगे. When we talk about wish, then also we use were. I wish I were the Prime Minister. We have used were. Although was is used with I was playing, but here as it is wish, so we are using were. I wish I were the Prime Minister. Simple past is used also with words today, recently, this month, week, this year. These are the words used in present. Present words are also used with simple past. I saw him today. I saw him recently. Rules. First we write subject, then second form of verb, object, etc. Affirmative sentence. He helped me. In negative sentence we use did not. When we use did not, we use first form of verb. Interrogative sentence, did is used as helping verb, then subject, first form of verb and object. ममता ने 2 गीत गाए. ममता, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म गाए. सिंग, सैंग. सिंग, सैंग, सॉन्ग. सैंग, टू, गीत की सॉन्ग्स. पहले आप वीडियो म्यूट करके इनको ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर इसके बाद चेक करिएगा कि आपने कैसे सही किया या रॉन्ग किया. रमेश ने झूठ नहीं बोला. रमेश नहीं के लिए हम डिड नॉट लगाएंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने वी टू यूज किया था, बट आपको बताया था कि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है. डू, डिड, डन. तो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको एक ही बार यूज करनी थी, वो हमने यहाँ यूज कर ली. अब V1 लगेगा. रमेश डिड नॉट टेल अ लाई. लाई झूठ. हमने उसे नहीं पीटा. हमने वी. नहीं के लिए डिड नॉट. पीटने के लिए बीट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे हिम. वी डिड नॉट बीट हिम. क्या आपने मेरा पत्र डाक में डाला. क्या के लिए हम डिड हेल्पिंग वर्ब पहले लेके लगाएंगे. डिड. आपने यू. डाक में डालने की पोस्ट. डिड यू पोस्ट
माई लेटर, डिड यू पोस्ट माई लेटर? क्या रमा ने 4 पत्र लिखे? क्या के लिए डिड रमा? लिखने की राइट। अगर ऐसे ये होता है रमा ने 4 पत्र लिखे, रमा रोट 4 लेटर्स। अब क्या पूछ रहा है? डिड रमा राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 4 लेटर्स। मैं प्रतिदिन सैर को जाया करता था। मैं की आई, जब जाया करता था, जो काम हमेशा किया करते थे, अब नहीं करते, वो यूज टू। आई यूज टू गो फॉर ए वॉक। सैर पर जाने की इंग्लिश होती है गो फॉर ए वॉक। आई यूज टू गो फॉर ए वॉक, प्रतिदिन के लिए डेली या एवरीडे। तुमने यह स्लेट क्यों तोड़ी? क्यों के लिए बाय। क्वेश्चन है तो डिड। वाई डिड यू? तुमने, अब सब्जेक्ट आएगा यू, जिसने तोड़ी है उसका यू। तोड़ने की ब्रेक। अगर तुमने स्लेट तोड़ी होता, तुमने यह स्लेट तोड़ी, यू ब्रोक दिस स्लेट। अब क्यों तोड़ी? वाई डिड यू ब्रेक। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां ब्रोक नहीं लगेगा। वाई डिड यू ब्रेक, यह है कि इंग्लिश दिस स्लेट। वाई डिड यू ब्रेक दिस स्लेट। बल्लेबाज ने 50 रन बनाए। बल्लेबाज, द बैट्समैन। हम पर्टिकुलर बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द लगाया। रन बनाने की स्कोर, स्कोर 50 रन्स। क्या कपिल ने 3 चौके और 2 छक्के लगाए? क्या पूछ रहा है? तो क्या के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा? डिड कपिल छक्के लगाने के लिए हिट 3। चौके की इंग्लिश होती है फोर्स, 3 फोर्स। और के लिए एंड, 2 की 2, छक्के की 6। डिड कपिल हिट 3 फोर्स एंड 2 6। तुमने नाश्ता कब और कहां किया? कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन, और के लिए एंड, कहां, कहां के लिए वेयर। व्हेन एंड वेयर। अब प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसलिए डिड आगे आएगा। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट खाने के लिए हम टेक लगाएंगे, ईट नहीं लगाएंगे। टेक ब्रेकफास्ट में यहां लिख रही हूं, मेरे पास स्पेस खत्म हो गया। ब्रेकफास्ट। When and where did you take breakfast? यह ग्लास किसने तोड़ा? किसने की? हु। इसमें डिड नहीं आएगा क्योंकि हु सब्जेक्ट है। हु ब्रोक दिस ग्लास। हु ब्रोक दिस ग्लास। तुम फुटबॉल कब खेलते थे? कब के लिए व्हेन। व्हेन डिड यू, खेलते थे मतलब खेला करते थे। व्हेन डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल। मुकेश के चाचा ने एक नया मकान खरीदा। मुकेश, मुकेश अंकल, ये अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा। मुकेश अंकल, मुकेश के अंकल। खरीदने की, परचेज्ड या बॉट। आप परचेज भी लिख सकते हैं, बॉट भी लिख सकते हैं। परचेज्ड अ, नया की न्यू हाउस। महेश अंकल परचेज्ड ए न्यू हाउस। क्या तुम प्रति सप्ताह पिकनिक के लिए जाते थे? डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड यू जाते थे, यूज टू। डिड यू यूज टू गो फॉर ए पिकनिक। प्रति सप्ताह, एवरी वीक। उन्होंने शॉप क्यों किया? वाई डिड दे मेक
अ नॉइज, उन्होंने शोर क्यों किया? राजेश ने तुम्हारे भाई का उपवास नहीं किया। राजेश डिड नॉट, उपहास करने की होगी मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ। तुम्हारे भाई, योर ब्रदर, ब्रदर आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन में, मैं यहीं पर लिख रही हूं। विमला ने किसकी साइकिल उधार ली? किसकी के लिए? हुज साइकिल। डिड आएगा, डिड विमला, उधार लेने की इंग्लिश बोरो। हुज साइकिल डिड विमला बोरो। हमने कुछ फूल चुने, वी प्लग्ड, चुनने की होगी प्लग्ड। कुछ सम फूल की फ्लावर्स। हाँ जी, इसको सुंदर राइटिंग में करिएगा और देख कर नहीं करने, आपने पहले वीडियो सुन लेनी है, फिर आप बंद करके, वीडियो बंद करके हिंदी उतार के फिर आप ट्रांसलेट करिएगा। ओके, थैंक यू।